Students, today we'll discuss one of the important topic of electrochemistry, that is electrochemical cell or galvanic cell. बेटा बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया था रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं देखा है तो जस्ट फर्स्ट सी द लेक्चर, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. ओके, सो आई स्टार्ट विद द electrochemical cell or galvanic cell. So what is the electrochemical cell? Cell which converts chemical energy into electrical energy. Means जो chemicals के अंदर energy होती है that has to be converted into the electrical energy, the main point of the cell. Now first we have to what is the construction of the cell. This cell is also said to be the galvanic cell. Beta, construction is just in front of you, just see. This cell consists of two chambers. This is left hand side chamber, this is right hand side chamber. In this left hand side chamber हमने what we have done, a zinc rod is kept in zinc sulfate. Clear कीजिए, zinc rod kept in zinc sulfate. Clear to all of you? This is said to be the anode and this chamber is said to be oxidation half chamber or anodic half chamber or anionic half chamber. The reason here oxidation takes place. What happens? ऑक्सीडेशन होगा. रिएक्शन अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे, बट एक बार मैं आपको बता जरूर दूं, ऑक्सीडेशन मींस जो आपकी जिंक रॉड है इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो दो हाफ पे डिवाइडेड है. फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एनोडिक हाफ विच कंटेन जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट. व्हेन वी गो टू द राइट हैंड साइड we are having the reduction half chamber which contains copper rod dipped in 1 molar copper sulfate. This is said to be the reduction half chamber or cathodic chamber or cationic half chamber because here reduction occurs. Reduction means ये जो copper sulfate में आपके Cu2 positive ions हैं, these Cu2 positive ion gain the electrons and convert into the copper. So short में अगर मैं आपको बताऊं, your cell is consisting of, I'll write here as far as construction is concerned, the cell is consist of two halves. Number one, oxidation half. Number two, reduction half. These two halves, these are externally connected with the help of voltmeter. Externally हमने किससे कनेक्ट किया है? वोल्टमीटर की हेल्प से कनेक्ट किया है. See, so I will write externally connected with the voltmeter and internally these are connected by this U-shaped glass tube that is said to be the salt bridge. I will say internally connected with salt bridge. So किसी भी चीज को स्टडी करने से पहले हमें स्टडी करना होता है what basically it is made up of, what is the construction. तो as far as construction is clear, I have written in the 3-4 lines. It is made up of two half. One is oxidation half, other is reduction half. These two halves are externally connected with the help of voltmeter and internally connected with the help of salt bridge. Clear to all of you? So this is all about the construction of electrochemical cell. Now the next part, choice of electrode. Choice of electrode, beta, it is one of the important part as far as numerical and conceptual is concerned. Just see here, two electrodes are present, zinc and copper. So I am having two electrodes, one is zinc, another one is copper. मैंने zinc और copper में से zinc को एनोड बनाया है और copper को कैथोड. ये रीजन आपको देखना है. For this, just see out standard reduction potential of zinc Zn2 positive to Zn is minus 0.76 volt, whereas standard reduction potential of copper is 0.34 volt. Just see out. अब दोनों के E नॉट रिडक्शन वैल्यूज मैंने आपको दी है. E नॉट रिडक्शन. अब एक हमारी फिलॉसफी है, द इलेक्ट्रोड हैविंग हाई E नॉट रिडक्शन.
अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इट मींस इट प्रेफर द रिडक्शन, वो किसको प्रेफर करेगा, रिडक्शन को प्रेफर करेगा, एंड इट विल एक्ट एज कैथोड। सिमिलरली अगर किसी इलेक्ट्रोड का देयर इज लेस ई नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, मींस वो रिडक्शन को प्रेफर नहीं करेगा, इट प्रेफर ऑक्सीडेशन, सो इट विल एक्ट एज एनोड। तो अगर बेटा शॉर्ट में बात की जाए, जो इलेक्ट्रोड हमने आपको दिया आउट ऑफ दीज इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड का ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगा दैट विल एक्ट एज कैथोड, जिसका ई नॉट रिडक्शन कम होगा दैट विल एक्ट एज एनोड। सो आउट ऑफ दीज जस्ट सी आउट, one is having the value minus 0.76 that is zinc and copper is having the value 0.34। अब इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू है वो कॉपर की है, it has more value, therefore copper will act as cathode, whereas the reduction potential of zinc is less। देखिए नेगेटिव में 0 से नीचे, तो the value is less, therefore zinc will act as anode। तो ये चीज आपको समझनी है अभी कि हम आपको कोई भी इलेक्ट्रोड दें तो यू हैव टू सी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है दैट विल एक्ट एज कैथोड, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है दैट विल एक्ट एज कैथोड। ये एक मैंने आपको बता दिया, मैं डायग्रामेटिकली भी यहां लिख रहा हूं, कैथोड की तरह कौन काम करेगा, विच हैज मोर ई नॉट रिडक्शन, वेयर एज एनोड की तरह कौन काम करेगा, विच हैज लेस ई नॉट रिडक्शन। सो दिस सेकंड पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड आपको कैसे करनी है, ठीक है ना, आउट ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोड विच विल एक्ट एज एनोड, विच विल एक्ट एज कैथोड, दिस वी हैव क्लियरली डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द वर्किंग ऑफ द सेल। जस्ट सी आउट हाउ द सेल वर्क्स। वर्किंग, now see the student, working is the important part of the cell. The working will start at the zinc or anode. So I have told you कि anode पे क्या होगा बेटा, at anode oxidation occurs. So जो आपका zinc है it will converted into Zn2 positive and 2 electrons। जो zinc है बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, it convert into Zn2 पॉजिटिव। डायग्रामेटिकली बड़े ध्यान से देखिए आप, क्लियर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स वाया दीज वायर एक्सटर्नल सर्किट, ये कहां पर एंटर करेंगे, आपके रिडक्शन हाफ चैम्बर में। तो फर्स्ट आई हैव रिटन एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स through external circuit enters in reduction half chamber। सबसे इजी, नॉट अ टिपिकल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव आयन में, इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट कहां पर पहुंच गए, आपके रिडक्शन हाफ चैम्बर में। नाउ इन द रिडक्शन हाफ चैम्बर ये आपका कॉपर सल्फेट है, यहां पर कॉपर किस फॉर्म में, Cu2 पॉजिटिव आयन। सो दीज Cu2 पॉजिटिव आयंस ये हमें कहां से मिले, फ्रॉम वेयर वी गॉट दीज, वी गॉट फ्रॉम CuSO4। सो दीज Cu2 पॉजिटिव वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा +2 इलेक्ट्रॉन्स and deposited at cathode. So what will I say, ये Cu2 positive what it does, it converts into copper by the gain of 2 electrons। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, जस्ट सी आउट बेटा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जस्ट सी आउट, आई राइट हियर, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और आपको पता है वेन एवर द इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स एक करंट बनेगा, और उस करंट की जो वोल्टेज होगी वो हमें कहां से मिलेगी, दैट वी गॉट फ्रॉम द वोल्ट मीटर, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट नाउ। सो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वेयर एज द करंट
द करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये जो वोल्ट मीटर का साइन है बेटा, इस साइन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर के अपोजिट डायरेक्शन, अगर आपका वोल्ट मीटर लेफ्ट में इंडिकेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स मींस राइट साइड में जाएगा, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आपका करंट फ्लो करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेन मैंने आपको दोनों चीजें यहां पे नोट कराई है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वेयर एज करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और वोल्ट मीटर में आपको क्या मिलेगी, जो आपके सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, द वोल्टेज दैट यू आर गेटिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने का लॉजिक नहीं है। तो वर्किंग जो है वो क्या है, वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन यहां से कहां गए, रिडक्शन ऑफ चैम्बर में, वहां आपका Cu2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर में, एंड इट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो ये हमारा प्रोसेस था पूरा वर्किंग का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज cell reactions, one of the important part. Cell reactions. These cell reactions are divided into two parts. First, electrode reactions. Second, overall सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन का मतलब आपकी इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। और फिर हम इन दोनों से एक ओवरऑल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सेड टू बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन। सो जस्ट इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं बेटा। फर्स्ट, रिएक्शन एट एनोड। सो एनोड पे क्या रिएक्शन आपकी, जस्ट सी आउट, जिंक, और आई विल राइट समथिंग हियर, एनोड, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। नाउ कैथोड पे क्या रिएक्शन है बेटा, जस्ट सी आउट, एट कैथोड जो आपकी रिएक्शन है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो ये आपकी अलग अलग इलेक्ट्रोड्स। नाउ हाउ टू राइट ओवरऑल सेल रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर। ओवरऑल के लिए क्या करना है, इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऐड, दोनों को ऐड करना है। तो इक्वलाइज तो आपको पता है कैसे करके आए हैं। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन आपके सेम है, अगर आपके एक हाफ में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे इक्वलाइज करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा आप रिडॉक्स की बैलेंसिंग में करते आए हो। सिमिलरली जस्ट सी आउट, अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 3, तो कैसे इक्वलाइज करेंगे बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रॉन आपको इक्वलाइज करने हैं, यहां पहले से इक्वलाइज है, कोई इशू नहीं है। और जब आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन कट नहीं हो रहा है, इट मींस हमारी मिस्टेक है। अब सिंपली लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करो बेटा, राइट को राइट में, यू विल गेट जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. दिस इज सेड टू बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन। सो आई विल अगेन एक्सप्लेन, जो आपकी सेल रिएक्शंस है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, ये आपकी 2 होंगी बेटा। फर्स्ट, रिएक्शंस अकरिंग एट एनोड, सेकंड द रिएक्शंस अकरिंग एट कैथोड, और दोनों को ऐड करोगे। ऐड करने का रूल यू हैव टू रिमेंबर, इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है, देन यू हैव टू ऐड, क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी में। सपोज हमने एक जो सेल है, हाइपोथेटिकल सेल लेके देखते हैं। हाइपोथेटिकल इन द सेल्स, इससे अलग आई विल टेक अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन द सेल रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। आई एम हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स, मेरे पास बेटा 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने आपको दे दिया और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने दिया। E0 Cu2 पॉजिटिव से Cu आपको पता है 0.34 वोल्ट, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
वो 0 वोल्ट। सो अब देखिए इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, कॉपर की वैल्यू ज्यादा है। सो कॉपर यहां पे कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज कैथोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज एनोड। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सेल बनाने की जरूरत नहीं, यहीं से इक्वेशन लिखेंगे। सो आई विल स्टार्ट, एनोड पे क्या इक्वेशन होगी, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ध्यान कीजिए 2H पॉजिटिव से H2 तो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन इसका रिवर्स होगा, रिवर्स इन द सेंस H2 से आप क्या करोगे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड कॉपर है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो एज इट इज आप लिखोगे Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Cu। तो Cu2 पॉजिटिव व्हेन गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू Cu। दोनों को ऐड कीजिए, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इक्वल है, कोई इशू नहीं है। सो व्हाट विल आई गेट, H2 प्लस Cu2 पॉजिटिव गिविंग यू 2H पॉजिटिव प्लस Cu। और अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते तो हमें इनको इक्वल करना होता बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब एक उसका भी एग्जांपल देखते हैं। नाउ आई एम हैविंग कॉपर सिल्वर सेल, इसमें डिस्कस करते हैं। वी नो दैट ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu बेटा 0.34 वोल्ट एंड ई नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag 0.80 वोल्ट। आप सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि इसमें से कौन काम करेगा एनोड की तरह और कौन काम करेगा कैथोड की तरह, विच विल वर्क एज एनोड एंड विच विल वर्क एज कैथोड। सो वैल्यू चेक कीजिए 0.80 0.34, दिस इज मोर वैल्यू। सो Ag जो इलेक्ट्रोड है इट विल एक्ट एज, I'll write here silver it will act as cathode whereas copper it will act as anode। और हमें अच्छी तरह पता है बेटा कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, whereas on anode what happens, oxidation। so just simply see how can I write anode। अब एनोड कौन है हमारा, just see out, एनोड है हमारा कॉपर। ऑक्सीडेशन तो Cu2 पॉजिटिव से Cu तो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन क्या होगा Cu से Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहीं से लिख सकते हैं, देखिए Cu2 पॉजिटिव से Cu रिडक्शन कैसे पता चला, जो आपको पहले सिखा रखा है मैंने। इस प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंडली जो वैल्यूज आपको दी जाती हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मींस जो लेफ्ट से राइट मूवमेंट है ये आपके रिडक्शन के लिए है, इसको रिवर्स करोगे तो ये किसके लिए हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के लिए हो जाएगा। चलिए अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड कौन है, सिल्वर। सो व्हाट विल यू राइट, सेम Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Ag। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी एज फार एज इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस आर कंसर्न। नाउ ओवरऑल इक्वेशन कैसे करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं। अब यहां पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1, सो हम इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 2Ag पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन विल बिकम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस बिकम्स 2Ag। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो गया। द इक्वेशन इज Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स यू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। सो ये मैंने आपके सामने बाय टेकिंग द डिफरेंट सेल्स मैंने आपको बताया हाउ टू राइट द इलेक्ट्रोड इक्वेशंस एंड ओवरऑल सेल इक्वेशन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ the next is the cell representation, very important part, just see out the students, cell representation। बेटा इस सेल को देखो, यहां पे क्लियरली क्या इंडिकेट है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास एनोड है, ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास कैथोड है और बीच में मेरे पास ये सॉल्ट ब्रिज है। सो सेल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट वी विल इंडिकेट एनोड, देन SB इट स्टैंड्स फॉर सॉल्ट ब्रिज एंड देन कैथोड। ठीक है, तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, जस्ट सी आउट। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, हम अलग अलग तरीके से कैसे करें। तो फर्स्ट मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ cell representation। first is with the help of
इलेक्ट्रोड इक्वेशंस। इलेक्ट्रोड इक्वेशन की हेल्प से लिखना सिखाएंगे कैसे लिखते हैं। तो आपके इलेक्ट्रोड इक्वेशंस क्या हैं? एनोड और कैथोड की। एनोड में जिंक गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी, और कैथोड पे है बेटा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। ठीक है, चलिए अब एनोड पे देखिए क्या हुआ, जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? Zn2 पॉजिटिव, सो यू विल राइट जिंक ऑब्लिक Zn2 positive. This is anode. Okay, got it? After that, these two parallel lines, these are for SB salt bridge. Remember these two parallel lines. Now cathode पे क्या हुआ? Your Cu2 positive is converted into copper, so you will write Cu2 positive converted into copper. So this is the representation of सेल, जिसमें लेफ्ट में यू हैव रिटन कि आपका जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, देन यू हैव इंडिकेटेड द सॉल्ट ब्रिज, आफ्टर दैट Cu2 पॉजिटिव गेट कन्वर्टेड इनटू द कॉपर। सो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन आपने की विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड इक्वेशंस। ओके, अब इसी रिप्रेजेंटेशन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओवरऑल सेल इक्वेशन। फिर से इसको मैं रब कर रहा हूं, बट नाउ वी विल डू दिस with the help of second overall सेल रिएक्शन और इक्वेशन से कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको भी सीखते हैं। मैं आपको इसी की इक्वेशन देता हूं जो हमारी आई थी अभी। वी विल गेट जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ओके, अब इससे आपको अपने सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट? थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, विल गेट हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है। Zn प्लस Cu प्लस 2 से बेटा Zn प्लस 2 और Cu। सो यहां देखो बेटा जो जिंक है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, वेयर Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu। ध्यान से देखिए, जब आपका जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, एंड व्हेनेवर Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट विल एक्ट एज एनोड, और जो रिडक्शन में बनता है दैट विल एक्ट एज कैथोड। सो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन। अब स्टार्ट करें। ऑक्सीडेशन में जिंक किस में कन्वर्ट हुआ? Zn2 पॉजिटिव, सो यू विल राइट जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। नाउ Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu, अगेन इक्वेशन सेम आएगी, प्लस Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu। मैंने इसी इक्वेशन को अलग करके लिखा है सो दैट आपको पता चले कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन। अब इसको सेल में रिप्रेजेंट करना है। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले एनोड, ये एनोड जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ? Zn2 पॉजिटिव, सो यू विल राइट जिंक Zn2 पॉजिटिव, देन सॉल्ट ब्रिज, after that Cu2 positive is converted into Cu2 positive Cu। तो सेल रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है एनोड, कैथोड, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। देन फर्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट द रिडक्शन प्रोसेस, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द ओवरऑल सेल इक्वेशन। ठीक है, ओवरऑल सॉरी वी कैन रिप्रेजेंट द सेल बाय यूजिंग ओवरऑल सेल रिएक्शन। सो यहां तक हमने बेटा सेल के बारे में अपना डिटेल स्टडी किया। डिटेल इन द सेंस उसकी कंस्ट्रक्शन वी हैव डन द वर्किंग, वी हैव डन इक्वेशंस, वी हैव डन द यू कैन से कंडीशन, हमने एनोड को क्यों सिलेक्ट किया, कैथोड को किया, ये सारा हमने स्टडी किया रिप्रेजेंटेशन। अब जो मेन पार्ट है आपका जो बचा हुआ है, ये जो इन बिटवीन हमने एक सॉल्ट ब्रिज बनाया हुआ है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज? ठीक है, एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो ये देखिए बेटा, ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है कुछ इस तरह की। तो पहले वही लिख दें हम, सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब,
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर है क्या? विच कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, मिक्स्ड विथ जेली। अगर हमने उनको जेली के साथ मिक्स किया हुआ है, ठीक है, ये दिस इज यू कैन से जेली के साथ मिक्स किया हुआ है, उसका रीजन मैं बताता हूं बेटा। जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली लिक्विड्स। सो अगर आप किसी लिक्विड को इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब में फिल करोगे तो वो लिक्विड क्या होगा बेटा? इट लिक्विड कम्स आउटसाइड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस लिक्विड को हमें कन्वर्ट करना है सेमी लिक्विड स्टेट में, और यू कैन से जेली। तो उसके लिए आपके इलेक्ट्रोलाइट को किसके साथ मिक्स करेंगे? अगर देन क्या होगा? अब ये लिक्विड नहीं रहेगा, इट विल बिकम्स सेमी लिक्विड और जेली लाइक अपीयरेंस, ड्यू टू विच ये यहां पर नहीं आएगा बाहर इन द चैम्बर्स। और ये कॉर्नर पे जो हमने लगा रखे हैं दीज आर यू कैन से कॉटन प्लग्स। कॉटन प्लग्स का फंक्शन क्या है कि थोड़ा बहुत जो अगर इन केस लिक्विड आता है तो वो नहीं आएगा। दूसरा, जब ये सेल काम करेगा, रिएक्शंस होंगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद दीज कॉटन प्लग दे विल कैच फायर, ठीक है, फायर होगा तो अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, ये जो आपका सेमी लिक्विड है ये कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और आपका यहां से जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है दे विल कम आउटसाइड, वो आना शुरू करेंगे दिस वे एंड दिस वे। तो ये अभी हम इसके फंक्शन में स्टडी करेंगे, बट एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न मैं भी इसको एरो हटा रहा हूं क्योंकि वो हम इसका डिटेल अभी वर्जन स्टडी करेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज है क्या? इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब जिसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया है मिक्स्ड विद जेली अगर सो दैट ये सेमी लिक्विड स्टेट में रहे, और यहां पे हमने कॉटन प्लग लगाए हैं सो दैट ये नीचे ना गिरे। नाउ विल स्टडी द मेन पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द you can say functions of salt bridge. Very important, just see out functions of salt bridge. Number one, it maintains electrical न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ्स। इसको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, तो जो Zn आयन है वो किस में कन्वर्ट हुआ? Zn2 पॉजिटिव आयंस में। तो इसके चारों तरफ क्या होगा? ऑल साइड्स Zn2 पॉजिटिव आयन आएगा। तो व्हेन इट इज सराउंडेड बाय Zn2 पॉजिटिव आयंस, ये जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ चैम्बर है इस पे धीरे धीरे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपका जो ऑक्सीडेशन हाफ चैम्बर हुआ उस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव। अब सिमिलरली यहां पर CuSO4 में से Cu2 पॉजिटिव आयन तो बेटा किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में, और वो इस रॉड पे जाके डिपॉजिट हो गया। पीछे क्या बचा आपका? व्हाट इज लेफ्ट? Cout। दिस इज 1 मोलर कॉपर सल्फेट +2 है। कॉपर तो जाके यहां इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। पीछे आपका कौन सा आयन बचा? SO4 2 नेगेटिव। सो धीरे धीरे क्या होगा बेटा? SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि Cu2 पॉजिटिव तो यहां पर डिपॉजिट हो गया, वो तो आपका कॉपर रॉड के साथ ही मिक्स हो गया एक तरीके से, इट बिकम द कॉपर रॉड, और पीछे आपका नेगेटिव आयन बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? इस पे धीरे धीरे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्लियर? सो दोनों हाफ पे क्या हुआ? एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, किस पे? लर्न कीजिए, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को दोबारा न्यूट्रल करने का काम कौन करेगा? सॉल्ट ब्रिज। कैसे करेगा? जस्ट सी आउट, हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। ये बेटा आपका एनोड में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, और एनोड पे Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी। तो यहां से जो आप इलेक्ट्रोलाइट आपने अंदर डाले हुए हैं, KCl है आपका, KNO3 है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स।
तो अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर से कौन सा आयन बाहर आएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव आयन बाहर आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये किससे कंबाइन करेगा? +2Cl नेगेटिव आयन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ZnCl2। तो आपका Zinc2 पॉजिटिव आयन Zn2Cl2 में कन्वर्ट हो गया, ड्यू टू विच ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कैसे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया? नेगेटिव को भी ऐसे करेगा, डिस्कस करेंगे पहले बाद में। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, तो आपके शॉर्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन बाहर आया, मींस अपोजिटली चार्ज आयन आया, उसने आपके चार्ज को क्या किया? न्यूट्रलाइज। कुछ ऐसा ही काम रिडक्शन हाफ में भी हुआ है। जस्ट सी आउट व्हाट हैपेंस इन द रिडक्शन हाफ। अगर हम रिडक्शन हाफ को ड्रॉ करें, दिस इज कॉपर रॉड और बेटा SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा है, ड्यू टू विच यहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब जो आपका शॉर्ट ब्रिज है यहां पर विच कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज KCl और KNO3, तो अब नेगेटिव चार्ज है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन। तो यहां से K पॉजिटिव आयन आपका बाहर आएगा एंड व्हाट दे फॉर्म? 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, दे विल फॉर्म K2SO4। सो ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस? आपका नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा। तो यहां पर भी शॉर्ट ब्रिज ने क्या किया? उसने अपोजिट चार्ज का आयन प्रोवाइड किया। क्लियर? तो हाउ ही मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? बाय सप्लाइंग द अपोजिटली चार्ज आयन। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहां से नेगेटिव आयन बाहर आया, Cl नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव चार्ज था तो यहां से बेटा पॉजिटिव आयन बाहर आया, K पॉजिटिव। सो डायग्रामेटिकली आपको क्लियर है? विल राइट व्हाट द एग्जैक्ट इज। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ्स maintains electrical neutrality of two halves by supplying oppositely charged ions। पहला फंक्शन आपको लर्न हो जाना चाहिए कि इन्हें अपोजिटली चार्ज्ड आयंस प्रोवाइड किए हैं। नाउ द सेकंड, it completes the internal circuit of the cell। सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेगा बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे? देखिए अब यहां पे बेटा, जब यहां पे एनोडिक हाफ में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सटर्नल सर्किट में जाना है, थोड़ी देर के लिए जिंक को मिटा रहा हूं, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां जा पाएगा? ये पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन आपका वहां नहीं जा पाएगा। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो ये उसको क्या करेंगे? रेपेल करेंगे, मींस वो इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। तो जैसे जैसे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेंगे और जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसको ये नेगेटिव आयन क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो सेल भी हमारा क्या हो गया? फिनिश, कोई काम नहीं। अब शॉर्ट ब्रिज का काम आता है। शॉर्ट ब्रिज ने क्या किया? अपोजिट चार्ज आयन प्रोवाइड किए, ड्यू टू विच ये पॉजिटिव आयन खत्म हुआ, पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, यहां से नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोबारा से क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट को इसने कंप्लीट किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मूव कराए। सेकेंडली, यहां से आयंस का मूवमेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। शॉर्ट ब्रिज से कौन मूव कर सकते हैं? आयंस। सो शॉर्ट ब्रिज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आफ्टर सम टाइम अगर शॉर्ट ब्रिज नहीं होता तो हमारा सेल काम करना ही छोड़ देता, ड्यू टू दिस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे अलाउ किया?
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके। ओके, नाउ द थर्ड फंक्शन जो लास्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसको कई बार लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। एक्चुअली बेटा यहां पर तो हमने दोनों हाफ अलग अलग ड्रॉ किए हैं, बट अगर आप इनलिटरली सेल को देखोगे तो एक ही कंटेनर में दोनों हाफ होते हैं, मींस ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। कुछ इस तरह का हमारे पास आता है अपीयरेंस। ये देखिए, ये आपकी जिंक रॉड, ये आपकी कॉपर रॉड, ठीक है। एक्सटर्नली हमने वोल्ट मीटर से कंबाइन कर दिया, और ये बीच में एक इनका लेयर। यहाँ पे आपने क्या डाला, ZnSO4, यहाँ पे क्या डाला आप लोगों ने, CuSO4, कुछ इस तरह का। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब आप ध्यान कीजिए क्या चीज़ बन गई थी, जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ था, Zn+2 में। तो यहाँ पर आपके कौन से आयंस आएंगे, Zn+2। यहाँ पर Cu+2 आयन किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉपर में। तो पीछे क्या बचे थे बेटा, SO4 2 नेगेटिव आयंस। क्लियर। तो जहां पर आपके लिक्विड मिक्स होंगे या उनके बीच में एक यू कैन से जंक्शन है, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो पोटेंशियल यहां पे डेवलप होगा, दैट इज सेड टू बी द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब सॉल्ट ब्रिज का काम शुरू होता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस Zn2 पॉजिटिव को कम करने के लिए कौन सा आयन प्रोवाइड करेगा, Cl नेगेटिव आयन, और SO4 2 नेगेटिव को कम करने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, K पॉजिटिव आयन। तो धीरे धीरे Zn2 पॉजिटिव आयन का अमाउंट भी कम होता चला जाएगा। यहां से SO4 2 नेगेटिव का भी अमाउंट कम होने का मतलब चार्ज कम होगा, क्योंकि आपका Zn+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnCl2 में, यानी यहां से पॉजिटिव चार्ज कम होगा। SO4 2 नेगेटिव इससे कंबाइन करके K2SO4 बनाएगा, ड्यू टू विच क्या होगा, नेगेटिव चार्ज खत्म होगा। धीरे धीरे ये चार्ज क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे चार्ज कम होगा इस पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल क्लियर है, अच्छी तरह से फिनिश नहीं करता इसको, क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए थोड़े बहुत आयंस तो बचेंगे ही जंक्शन पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर ये नहीं लिखना है कि इट फिनिशेस, यू विल टू राइट इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दोनों वर्ड ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एज वेल एज लिक्विड। तो ये आपको क्लियर हुआ कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन जंक्शन पर इकट्ठे होंगे, ड्यू टू विच एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। उसको कम करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपोजिट आयन देगा, जो आपके Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव को कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेगा। SO4 2 नेगेटिव का क्या बनाया बेटा, K2SO4, और Zn2 पॉजिटिव का क्या बनाया, मैं यहां लिख रहा हूं ZnCl2। ठीक है, अब ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, मतलब ये चार्जेस धीरे धीरे कम होंगे। ये चार्ज कम होंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, मींस इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन potential. Now this is you can say the definition or functions of salt bridge. Now one more thing we have to discuss regarding the salt bridge, that is salt bridge में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस fulfilled by the electrolytes to be used in salt bridge. सो पहली कंडीशन क्या है बेटा, जो आपके केटाइंस और एनाइंस है उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, मींस द केटाइंस एंड एनाइंस मस्ट हैव द सेम मोबिलिटी। इसका रीजन क्यों है, देखिए यहां से नेगेटिव आयन बाहर आएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यहां से पॉजिटिव आयन आएगा न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर इनकी मोबिलिटी बराबर है तो इनका जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो एकदम एग्जैक्टली सेम टाइम पे होगा। ठीक है, ड्यू टू विच हमारा जो सेल है वो प्रॉपरली काम करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, मोबिलिटी सेम क्यों होनी चाहिए, सो दैट न्यूट्रलाइजेशन अकर्स एट इक्वल रेट। दोनों बराबर टाइम पे क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, और वो हमारे सेल के वर्किंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड,
ions are not involved in electrochemical change. मैं आपको क्लियर करूं इसका मीनिंग क्या होता है। हमने अभी सेल की इक्वेशन लिखी थी कि जिंक जो है इट प्लस Cu2 पॉजिटिव गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये हमारी एक सेल रिएक्शन है जिसकी वजह से बेटा हमें क्या मिला, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो जो भी आप आयन यूज करोगे वो इस रिएक्शन के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, मींस इस रिएक्शन को डिस्टर्ब ही नहीं करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नो इन्वॉल्वमेंट विद दिस इक्वेशन, क्लियर, टच नहीं करना, इसके साथ कोई इंटरआनिक अट्रैक्शन नहीं करना, नथिंग ही हैज टू डू विद दिस नाउ, क्लियर। क्यों, अगर ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम आई तो ऑटोमेटिकली हमारा सेल क्या करेगा, काम करना बंद करेगा। थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे मस्ट बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट मीन्स they do not react with the electrodes or ions। ना तो बेटा वो आयन से रिएक्ट करें और ना किसी भी इलेक्ट्रोड से उनको रिएक्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर हम नॉर्मली सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड किसके लिए बेटा, मैंने सिल्वर, तो सिल्वर की इलेक्ट्रोड अगर मैं लूंगा तो सॉल्ट ब्रिज में मैं KCl यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, KCl से मेरे को क्या मिलेगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव Ag से कंबाइन करके क्या बनाएगा, AgCl। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ना तो इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करेगा और ना ही आयन से रिएक्ट करेगा। मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको कि अगर आप सिल्वर इलेक्ट्रोड लोगे तो आपको KCl यूज नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस इलेक्ट्रोलाइट को यूज करें और किसको ना करें। सो दिस इज यू कैन से ऑल अबाउट द कंडीशंस फुलफिल्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स टू बी used in salt bridge. Now beta, this is all about the theoretical part of electrochemical cell. Now we will discuss the main part, that is you can say numeric and conceptual, जो बड़ा important part है, numeric and conceptual, in which we will do some question regarding the electrochemical cell. So I'll start with the question number 1. Question number 1 says, out of copper and silver electrode, मेरे पास बेटा दो इलेक्ट्रोड है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, out of copper and silver electrode which act as cathode, which act as anode, clear, then write cell reaction, ये मुझे करना है। and what is given to me, E0 Cu2 positive to Cu is 0.34 volt, E0 Ag positive to Ag is 0.80 volt. This is the question number 1. See out the students, not a typical one. सबसे पहले कैथोड की कंडीशन पे जाइए। What is the condition for cathode? क्या बताया था मैंने आपको, more E0 रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा डेट विल एक्ट एज कैथोड। तो जस्ट सी द टू वैल्यूज आउट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज्यादा है 0.80, दिस इज यू कैन से मोर E0 रिडक्शन। सो यहां पर व्हाट विल आई राइट, हु विल वर्क एज कैथोड, सिल्वर, एंड हु विल वर्क एज एनोड, कॉपर ऑब्वियसली। सो फर्स्ट वर्क इज क्लियर। अब सेल इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखें, जस्ट सी आउट। अब कॉपर का होगा बेटा एनोड, एनोड पे क्या होता है, यू रिमेंबर ऑक्सीडेशन, तो कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेयर एज कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, सो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag। अब आप कहोगे सर कि यहां पे आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पे 2, ये बेटा हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्लियर है कि अगर आपको कन्वर्ट करें तो Cu2 पॉजिटिव से Cu बनेगा या Cu से Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली देखिए, या तो Ag पॉजिटिव से Ag बनेगा या Ag से Ag पॉजिटिव, ये हमारा क्लियरली इंडिकेटेड होता है इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स
वैल्यूज। सो ये इलेक्ट्रोड इक्वेशंस हैं। अब ओवरऑल सेल इक्वेशन, मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ कंडीशन फॉर ओवरऑल सेल इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, सो मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ओके, नाउ ओवरऑल सेल इक्वेशन इज Cu plus 2Ag positive gives you Cu2 positive plus 2Ag. This is the clear condition. Now cell representation कैसे करें? We have to represent the cell. That is an important thing. Just see out. Cell representation में what we will do? If you remember, beta in the cell representation first we will write anode, then salt bridge, then cathode. सो जस्ट देखिए बेटा, एनोड कौन है आपका? कॉपर, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, सो आई विल राइट Cu2 पॉजिटिव। सॉल्ट ब्रिज, देन कैथोड पे 2Ag पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस Ag, सो आई विल राइट ट्वाइस Ag पॉजिटिव 2Ag. दिस इज एनोड एंड दिस इज cathode. So this is question number 1 that we have done. Now question number 2. Question number 2 is quite interesting. He says, if I am having silver, copper and zinc electrode, बेटा मेरे पास 3 इलेक्ट्रोड है, कॉपर, सिल्वर एंड जिंक इलेक्ट्रोड. I have to construct a cell. मुझे एक सेल कंस्ट्रक्ट करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो वैल्यूज मेरे को गिवन है, कंस्ट्रक्टर वैल्यूज आर E नॉट, Zn प्लस 2 to Zn इज माइनस 0.76 वोल्ट, E नॉट Cu प्लस 2 से Cu बेटा 0.34 वोल्ट, E नॉट Ag positive to Ag is 0.80 volt, whereas given. So by using these value what I have to do, मुझे एक सेल कंस्ट्रक्ट करना है एंड सेल रिप्रेजेंट करना है. So just see the solution. बेटा all these are electrode potential. देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सिल्वर की 0.80, means this will act as cathode. और सबसे कम वैल्यू किसकी है? जिंक, सो इट विल एक्ट एज एनोड. रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू, द इलेक्ट्रोड हैविंग द हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल एक्ट एज कैथोड, व्हाइल द लोअर विल एक्ट एज एनोड. सो अब इतना तो क्लियर हो गया, हमारा एनोड कौन है बेटा? जिंक. सो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? जिंक से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ कैथोड पे कौन काम कर रहा है आपका? सिल्वर. सो द इक्वेशन इज Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag. ये आपको याद रखना है हमेशा कि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन और कैथोड पे बेटा ऑलवेज रिडक्शन. नाउ ओवरऑल सेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जस्ट सी आउट. क्या इलेक्ट्रॉन इक्वल है? सी आउट. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल. सो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2. सो बेटा ये 2 और ये 2 ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल होंगे. यू विल गेट Zn plus twice Ag positive giving you Zn2 positive plus twice Ag. Now the cell representation. Anode zinc किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Zn2 positive. Then salt bridge. Cathode twice Ag positive किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Twice Ag. So this we have done question number 2. Not a typical one, quite easy, but concept आपको ध्यान करना है, बहुत important है concept that you have to use. Okay. Now we'll go to question number 3 now. What question number 3 says? Write इलेक्ट्रोड रिएक्शंस. हमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी है एंड ऑफ सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी है. द सेल गिवन टू अस इज निकल 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज
Cu2 positive to Cu. First part is this. Second given to us is Zn2 positive 2H positive से H2. चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे इसको. जस्ट सी आउट द पार्ट नंबर 1. वेरी इजी पार्ट है. तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपको सेल गिवन है. इट मीन्स निकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल 2 पॉजिटिव, और Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में. ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड. इतना आपको क्लियर है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनोड. निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन. कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में. तो ये चीज यहां से समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि लेफ्ट टू राइट जाना है. निकल निकल 2 पॉजिटिव. सिमिलरली जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से Cu. सिमिलरली ट्वाइस H पॉजिटिव से H2. अब ये हो गया आपका. अब इनको ऐड करेंगे, वी विल गेट ओवरऑल सेल इक्वेशन. इलेक्ट्रॉन सेम है, कट कर दीजिए. सेम नहीं होते तो हमें इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना होता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चलिए व्हाट आई गेट, निकल प्लस Cu2 पॉजिटिव गिविंग यू निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. ओके, दिस इज पार्ट नंबर 1. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑन द सेम पैटर्न. Zinc is converted into Zn2 positive and 2H positive is converted into H2. ये आपको पता है, on the left anode, on the right cathode. So anode, zinc converted into Zn2 positive plus 2 electron, whereas students cathode 2H positive plus 2 electron H2. इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन सेम है, कट कर दीजिए. ओवरऑल जिंक प्लस 2H पॉजिटिव गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस H2. सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. जस्ट सी आउट व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इज. Okay, represent the cell from cell reactions. आपको बेटा सेल रिएक्शंस हम देंगे, उससे आपको सेल बनाना है. सो 2 के नंबर 1 ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस Pb गिव्स यू twice Ag plus Pb2 positive. Second is Cg plus 2H positive giving you Cd2 positive plus H2. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं. कैसे करते हैं, करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली वेरी इजी. इन ओवरऑल इक्वेशन की हेल्प से आपको सेल बनाना है. चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. पार्ट नंबर 1. पहले इक्वेशन लिखिए, 2 Ag positive plus Pb, what it gives, twice Ag plus Pb2 positive. अब देखिए Ag पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1. Pb की स्टेट क्या है, 0. यहां पर सिल्वर की स्टेट 0, Pb2 पॉजिटिव की स्टेट +2. यानी सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करी है. अब Ag पॉजिटिव से जब आप Ag पे जाओगे तो बेटा +1 से 0 क्या है आपका, +1 से 0 क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस ये आपका रिडक्शन. और जब आप लेड में 0 से +2 जाओगे तो ये क्या है आपका, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन. तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड. ठीक है, चाहो तो इक्वेशन को अलग अलग भी कर सकते हो, बट हमें सेल बनाना है तो मैं पहले सेल बनाऊंगा फिर इक्वेशन अलग करूंगा. तो सेल में सबसे पहले क्या होता है आपका, एनोड, देन शॉर्ट ब्रिज, देन कैथोड. सो एनोड कौन है आपका, देखिए Pb. ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb2 पॉजिटिव, शॉर्ट ब्रिज. कैथोड कौन है, ट्वाइस Ag पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ट्वाइस Ag. दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन. और अगर आपको इक्वेशन अलग लिखनी है तो बेटा एनोड की इक्वेशन क्या आएगी, Pb
converts into Pb2 positive plus 2 electron, whereas cathode, what will I get? Twice Ag positive plus 2 electron giving you twice Ag. तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम करेंगे इस चीज को, ठीक है, बट बेसिक्स आपको बहुत क्लियरली होने चाहिए, देन यू आर एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ विल शिफ्ट टू द सेकंड पार्ट. सेकंड में भी जस्ट नोट डाउन द इक्वेशन. इक्वेशन इज कैडमियम प्लस 2H पॉजिटिव गिविंग यू Cd2 पॉजिटिव प्लस H2. पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, कैडमियम 0, H पॉजिटिव प्लस 1, Cd2 पॉजिटिव प्लस 2, H2 0. अब देखिए कैडमियम 0 से प्लस 2, तो बेटा 0 से प्लस 2 क्या होगा? इंक्रीज, मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मीन्स ये एनोड. हाइड्रोजन देखिए प्लस 1 से 0, प्लस 1 से 0 डिक्रीज मीन्स रिडक्शन, यानी ये कैथोड. तो पहले सेल बनाते हैं. सेल में क्या होगा? एनोड, शॉर्ट ब्रिज, कैथोड, ठीक है ना, लर्न कर सकते हो AC. सो एनोड है कैडमियम, किस में कन्वर्ट हुआ? Cd2 पॉजिटिव, शॉर्ट ब्रिज. कैथोड है 2H पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट हुआ? H2 में कन्वर्ट हुआ. सो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन. नाउ इक्वेशन भी देख लेते हैं बेटा. एनोड पे क्या हुआ? देखिए कैडमियम कन्वर्टेड इनटू Cd2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, whereas on cathode twice H positive plus 2 electron converts into H2. So this we have done the last question, very important beta. और आज जो हमने टॉपिक किया, it is one of the important topic. What we have done simply, we have done the electrochemical cell in detail and all the conceptual and numerical part. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th. सो अगर ये लेक्चर आपने देखा और इससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पहले उसको देखिए तब इसको देखिए, ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस लेक्चर को स्टडी नहीं कर पाओगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट्स ऑल.